आपने बताया कि यूएस के अर्निंग्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग एंड देयर ग्रोथ हैज बीन मच हायर एज कम्पेयर टू इंडिया, बट यूएस का परसेंटेज जीडीपी एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड जीडीपी दैट हैज बीन फॉलोइंग. तो ये कॉन्ट्रेरियन सो क्या हो उल्टा रहा है. है? यूएस का so I see your point that so US stock market is around 70% of the world's market cap. ठीक है, US stock market is around 70% of the world's market cap. ये जो blue line है इस चार्ट में कुशल, the blue line is US companies' share of global profits. So you can see that blue line till roughly 2018, the blue line was stable at 30%. So even if it had gone back all the way to the early 90s, US ka share of global profits was around 30%. And those are from 2000, from 1997 to 2017, US market share of global profits was 30%. And then it rockets, right? As social media, as AI, as technology becomes the core platform of our life, as all of that kicks in, US market ka jo share of global profits goes from 30 to 40% in 10 years, right? And this really is underpinning the global bullying that Donald Trump is doing. He's able to do that global bullying on the back of that blue line, right? वो blue line के बलबूते पे अमेरिका की डोमिनेंस बरकरार है, right? यूरोप ने अपने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने. मेरे ख्याल से जापान भी करेगा, बिकॉज अमेरिका, ये ब्लू लाइन दिखला रही है आपको कि अमेरिका रूल्स द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? ये जो ब्लू लाइन का जो सर्ज है ये इनक्रेडिबल है. सोचिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, 70% मार्केट कैप, 2018 से 25 के बीच 30 से 40% छलांग मारा है इसका शेयर ऑफ ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी. सो अमेरिका, यूएस's शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज इररेलेवेंट. वो काफी अखबारों में छपता रहता है, वो इररेलेवेंट मेट्रिक है, उससे आपका मेरा कोई संपर्क नहीं है. When we invest in Apple, we're not really investing in the American economy, because Apple की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी की पूरी एशिया में है, उनकी आधी बिक्री भी अमेरिका के बाहर है. So when you're investing in Apple, you're not really investing in America, you're investing in the success of American companies. When you invest in ASML is a Dutch company, but उनकी almost सारी बिक्री एशिया में है, right? When you're investing in ASML, you're not really investing in the Dutch economy. You're investing in intellectual property of a company which supplies to the world. So ये काफी लोग नेशनल झंडा उड़ा के स्टॉक मार्केट में झंडाबाजी करते हैं. I mean, they can carry on doing झंडाबाजी, but irrelevant है, because जैसे आप देख रहे हो, what's relevant is अमेरिका में जो कंपनीज लिस्टेड है उनका शेयर ऑफ ग्लोबल प्रॉफिट्स. What's irrelevant is America's share of global GDP, right? And coming back to India as well, what's irrelevant is इंडिया की जीडीपी ग्रोथ. स्टॉक मार्केट के अगर माध्यम से देखें, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उतनी अहमियत नहीं रखती जितना रखती है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, राइट? जीडीपी इज अ मेट्रिक दैट इज यस्टरडेज मेट्रिक. स्टॉक मार्केट की मेट्रिक है प्रॉफिट ग्रोथ कितना दिला सकते हो. बिकॉज दैट ब्लू लाइन इज शूटिंग अपवर्ड्स, America is able to deliver earnings growth, right? America is able to deliver earnings growth, which is, sorry, one second, let me just go there. America is able to deliver earnings growth. If you look at the left-hand side of the screen, American GDP growth तो 3% है ना. American GDP growth 3%, लेकिन उनकी earnings growth 9-10% है. Why? Because American company share of global profits is shooting up. So, coincidence देखिए और paradox देखिए. India's GDP growth is twice that of America. 6 versus 3, ठीक है, 6 versus 3. America's earnings growth is twice that of India, right? 11 versus 5.5, right? So that is the paradox on which we have to pivot. Now, where the case for diversification is even stronger is उनकी valuation multiples हमारे से कम है. अगर आप Nvidia को पिक्चर से बाहर निकाल दें, it's easy to take Nvidia out of the picture. S&P 500 equal weighted जो है, ये वाला जो है S&P 500 equal weighted, that effectively takes Nvidia out of the picture, right? They are at 17.5. मेरा ज़्यादा फोकस रहता है S&P मिड कैप पे, वहाँ पे हमारी टीम पैसा लगाती है, यूरोपियन अमेरिकन मिड कैप पे, वहाँ पे 16.5 टाइम्स पे मिल रही है, राइट? आप सोचिए, इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप 32-33 पे तो एवरेज है, अमेरिकन स्मॉल एंड मिड कैप 16-17 पे पी मल्टीपल पे उपलब्ध है, और अर्निंग्स ग्रोथ उनकी दुगनी 3 गुनी है इंडिया के मुकाबले. So you're getting currency diversification,
you're getting a different type of company. The three types of companies I explained: neutral arms dealer, utility, ultra luxury. You're getting diversification in terms of a different type of company. And thirdly, you're getting valuation diversification. You're buying good companies at 16, 17 times PE, right? Compared to buying Indian companies where growth is a challenge at 32, 40, 50, 60 PE. आपने एप्पल का एग्जांपल दिया एंड आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर एप्पल बेसिकली इंडिया से $10 बिलियन रेवेन्यू जनरेट अभी करता है. अच्छा, डोमेस्टिकली 10 बिलियन करता है, बिल्कुल जी, करेक्ट. सटीक तो बोला. इसमें मेरे को ये पूछना था कि अभी एप्पल जैसी कंपनी, आपका जो वो फ्रेमवर्क था पिक एंड शॉवल, इनविजिबल हाँ जी. यूटिलिटीज एंड वहां पे तो कंजम्पशन, तो उसमें हाँ जी, कहाँ पे एप्पल यूटिलिटी पे आ गई है. एप्पल इज अ क्लासिक यूटिलिटी, 12% EPS करेक्ट. कंपाउंडिंग. तो उस पे आपका क्या थीसिस है? लाइक एप्पल पे आपका क्या तो एप्पल thesis हमने है? बिल्कुल शुरू, हमने 3 साल पहले हमने ग्लोबल कंपाउंडर्स की हाँ. जब शुरुआत की थी, हमने एप्पल ली थी. एप्पल खूब चला, पहले 1.5-2 साल में खूब चला. फिर हमारी जो ग्लोबल टीम है उसने बोला कि ये बहुत महंगी हो गई है, राइट? बिकॉज इसकी अर्निंग्स इतनी स्टेबल है, यू कैन एक्चुअली, बिकॉज अर्निंग्स आर स्टेबल 12% के आसपास, एंड उसके सोर्सेज ऑफ कंपाउंडिंग भी, द सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ आर आल्सो प्रीटी क्लियरली वेल एस्टैब्लिश्ड. दे सेड इट्स बिकम सुपर एक्सपेंसिव. तो करीबन 1.5 साल पहले हमने पोजीशन बहुत छोटा कर दिया. हमारे बेचने के कुछ 3-4 महीने बाद वॉरेन बफेट जी ने भी अपना एप्पल छोटा कर दिया. तो स्टॉक ऑब्वियसली उनके बेचने के बाद काफ़ी गिरा, और हाल ही में एप्पल सस्ता हो गया. द अदर रीजन एप्पल बिकेम सस्ता वाज नॉट जस्ट वॉरेन बफेट जी ने बेचा, चाइना में भी ग्रोथ की दिक्कतें आने लग गई. चाइनीज डोमेस्टिक कंजम्पशन में ग्रोथ की दिक्कत आने लग गई एप्पल को. तो एप्पल सस्ता हो गया था, तो हमने थिंक मंथ अगो वी बिल्ड बैक अ मोर डिसेंट, अ मोर साइजेबल पोजीशन इन एप्पल. एंड इसमें लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें एप्पल का, तो देन यू आर लाइक स्टिल बुलिश ऑन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दैट इट कैन जनरेट एंड ऑल. सो इट्स, वी आर बुलिश बिकॉज मुझे पता नहीं था, ग्लोबल टीम ने मुझे समझाया कि आप इसको नॉर्मल फैशन वाला कंजम्पशन प्रोडक्ट के नजरिए से मत देखिए. क्योंकि मेरे दिमाग में था एप्पल इज अ लग्जरी गुड, एप्पल का ये फोन चलेगा बट वो फोन शायद ना चले, शायद उनका वो चश्मा वाला कुछ ला रहे थे वर्चुअल रियलिटी, वो चल पड़े, राइट? आई वाज थिंकिंग ऑफ इट इन अ मोर फास्ट फैशन सेंस ऑफ द वर्ड. द ग्लोबल टीम टॉट मी आप गलत सोच रहे हो. आईफोन्स, आईपैड्स, एयरपॉड्स, क्लाउड, एप्पल का जो क्लाउड है, दे आर ऑलमोस्ट अ यूटिलिटी नाउ. एसेंशियल चीज बन गई है फॉर अ होल क्लास ऑफ ग्लोबल कस्टमर्स, इंक्लूडिंग आई हैव टू कन्फेस माय वाइफ एंड माई सेल्फ एंड माई बच्चास, राइट? ये हमारे लिए यूटिलिटी है. बिकॉज यूटिलिटी है, आपका 12% EPS कंपाउंडिंग चलता रहेगा, और आपको उस नज़रिए से सोचना है कि ये एक ग्लोबल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट बन गई है, राइट? तो अगर वैसा सोच के चलो तो एप्पल का आप वैल्यूएशन रेंज देख के निवेश कर सकते हो. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.